Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. You must be seeing me for the first time. So my name is Nisha. You can call me Nisha ma'am. This is the class for 10th and I have been teaching you English from the past. You can say 1 month. And today we will be discussing about your chapter, which is a new chapter, which is your chapter number 6. So hi students, again I hope that all of you are doing fine at your home and must be reading your English book, which is so interesting. So keep on reading. ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आप रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स कभी नहीं आएंगे. And if you talk about a language subject, it needs a lots and lots of command. I know that some of you must be lacking in reading and in so many other things, but when you will go in your board exams, you will have to be the perfect. You will have to give your 100% because boards are very much important for our life. So if you talk about the subject, which is English, a language subject as Hindi, but Hindi is very easy for us as we all speak it. It is our native language. But if we talk about the English, it is your language. It is your second language. It is not your native language. So you need a command over it. We will do it when we will see each other in the offline classes. But for now, we will be completing this book, this Golden Rays book. Okay. So take out this book, Golden Rays book, and today we will be discussing the chapter 6th of this book. Till here we have completed the second chapter, third, fourth and fifth. The last was A Hero, which was a story written by prestigious writer R.K. Narayan. The main characters were the Swami and his father. Okay, so today we will be discussing your chapter 6th. So let us begin our class now. You will have to look into your book, and if you like, you have to look in the screen also and in the book also, and always keep a pencil in your hand. That is very much necessary कि बुक अपने सामने आपको रखनी है, स्लाइड में भी देखना है, साथ साथ बुक में भी देखना है, पेंसिल अपने पास रखनी है. ओके, आई होप सब कुछ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास. देखिए, व्हाट इज अमिस विथ अस. क्या है टाइटल? व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर चैप्टर? व्हाट इज अमिस विथ अस. अमिस मतलब होता है रॉन्ग. हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत है हमारे साथ. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. अ टाइटल विथ अ क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स दैट दिस टाइटल वॉन्ट्स यू टू थिंक. ये टाइटल चाहता है कि आप सोचो कि हमारे साथ क्या गलत है. ओके, सो हमारे साथ क्या गलत है. वी आर इंडियन. हमारी इंटेलेक्चुअलिटी या आप कह सकते हैं मेंटालिटी इज डिफरेंट, एंड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, उनकी मेंटालिटी इज डिफरेंट. मेंटालिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, बट in this topic we will be discussing what is written over here. So let us begin our class now. Indian intellect, इंडियन इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है कि इंडियंस की मेंटालिटी क्या है. देखते हैं ज़रा. आवर नेशन इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल. ओके, आवर्स इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. बिल्कुल. एंड इफ़ यू मस्ट बी अवेयर, न्यू मूवी रिलीज़ हुई है अभी, शकुंतला देवी, जिन्हें कि ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, इंडिया से ही बिलोंग करती थी. उन्होंने कंप्यूटर को भी मात दे दिया था. सो हमारी कंट्री ने कितने सारे इन्वेंशंस किए हैं कि आज हम बहुत जल्द एक डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. किसी भी आप सेक्टर में बात करें, हमारी कंट्री बहुत आगे अब निकल चुकी है, मार्स तक जा चुकी है. तो बात करते हैं हमारे देश में. देयर आर सो मैनी इंटेलेक्चुअल्स. दिस इज़ अ ट्रू थिंग दैट आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स. ओके, इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रोइटिज्म. पेट्रोइटिज्म का मतलब ये है, या पैट्रियोटिज्म का मतलब ये है, जो आपकी राष्ट्र के प्रति, आपके देश के प्रति जो आपका प्यार है, जो स्नेह है, उसको कहेंगे पैट्रियोटिज्म. अगर हम शेयर की बात करें तो बिल्कुल क्लियर, और ये सब जो बातें हैं, इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रियोटिज्म. मतलब ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर नहीं कही गई है बातें, ये रियलिटी है, ये सच है.
ओके, स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, ठीक है, जो चीज़ें हम देखते हैं, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स are going to some another country. Why? Because they are getting better facilities there, they are getting better money there, so why no will lose this chance? Nobody will lose this chance. Why someone will stay in our country if it is having, or he or she is having, a much bigger offer from the other countries? सो जो स्टडीज़ हमारे देश में हुई है और जो स्टडीज़ हमारी अब्रॉड में हुई है, मतलब अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो ये चीज़ें सामने आई हैं दैट आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ओके, not long ago a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस. ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है. अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन. तो ब्रिटेन की स्कूल्स में, इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन, और यू कैन से देयर वॉज अ इंटेलिजेंस टेस्ट टू फाइंड आउट दैट which kind of children, or you can say from which countries children are the most intelligent. बात ये कही गई है कि ब्रिटेन की एक स्कूल में, कह सकते हैं ब्रिटेन के स्कूल में ये टेस्ट लिया गया, इंटेलेक्चुअल टेस्ट लिया गया कि देखा जाए कि कौन सी कंट्री के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है. ओके, यस. विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस. एक्सेल्ड मतलब होता है बिल्कुल सुपीरियर. आप सुनते थे ना पहले के, अभी पता नहीं, मैंने तो बहुत सालों से किसी बच्चे को एक्सीलेंट नहीं दिया है, एंड आई एम वेटिंग कि कोई ऐसा बच्चा मुझे मिले जिसे मैं एक्सीलेंट दूँ. आई वॉज अ स्टूडियस गर्ल, आई वॉज वेरी मच कीन ऑफ स्टडीज़, सो मुझे एक्सीलेंट मिलता था. अभी तो नए नए कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, बट एक्सीलेंट एंड एक्सेल्ड मतलब बिल्कुल सुपीरियर. यू आर ऑन द टॉपेस्ट, यू कैन से ऑन द टॉपेस्ट लेवल. गॉट इट? गॉट माई पॉइंट. ये देखना है कि कौन सा नेशन, कौन सी कंट्री इज एक्सेलिंग, सबसे ऊंचे पायदान पे कौन सी कंट्री. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर चिल्ड्रंस. ठीक है, बिल्कुल भाई, भारत का लोहा हम मनवा चुके हैं पूरे विश्व में. क्यों मनवा चुके हैं? क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम किसी भी देश में जाके अपना नाम बना सकते हैं. समझ गए आप मेरी बात? किसी भी देश में जाके आप अपना नाम बना सकते हैं. अब जब वो टेस्ट हुआ तो उसमें ये देखा गया दैट इंडियंस, जो भारतीय हैं, वो सुपीरियर हैं उनके नेटिव बच्चों से भी ज़्यादा. इट मीन्स द चिल्ड्रंस हु आर बिलोंगिंग टू दैट प्लेस, फ्रॉम देम ऑल्सो, उनसे भी ज़्यादा द इंडियंस आर मच मोर, यू कैन से, इंटेलिजेंट. In terms of whatever the test was, the result was that the Indians were intelligent. Okay, yeah. If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? अगर ये सच्चाई है, अगर ये ट्रुथ है, अगर यही बात है, तो क्यों हम लैग कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में? क्यों हम सुपर पावर्स से लैग कर रहे हैं? सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज़ जिनका पूरे तरीके से विकास हो चुका है, जो विकसित देश है. हम हैं विकासशील देश, हम अभी भी विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, रेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएंगे. एंड वन डे वी विल बिकम द डेवलप्ड कंट्री. दिस डेवलपिंग टैग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर कंट्री. अगर ऐसी चीज़ें हैं, इफ़ इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, देन why we are beyond these superpowers. हम क्यों सुपर पावर्स से पीछे हैं? Why there is brain drain from our country to other affluent countries? क्यों brain drain का concept है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में? ये जो brain drain का concept है, ये कहाँ से आया है? हमारी कंट्री का जो इतना अच्छा टैलेंट है, our country is having lots and lots of talent, then why this talent is moving to these affluent nations which are wealthy, which is having so much of powers
and money. I know they are going to pay you much higher. So क्यों हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं जबकि हमारे देश को उनकी ज़रूरत है? Because they are looking towards the money or you can say for better opportunities. तभी तो वो वहाँ जाएंगे. Obviously कोई भी जाएगा अगर उसे यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर यू कैन से फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो कोई भी ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, वो दूसरी जगह ज़रूर जाएगा इफ़ ही और शी इज़ गेटिंग समथिंग मच बेटर देन हियर. ओके, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा होता है? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन इज हियर? ओके, या व्हाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड्स आर एक्सपोर्ट्स. ठीक है, क्यों हमारे इम्पोर्ट्स एक्सीड्स करते हैं एक्सपोर्ट से? मतलब हम बाहर कम बेच रहे हैं, हम बेच अपना सामान बाहर कम रहे हैं और बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में ज़्यादा सामान आ रहा है. क्यों हो रहा है ये सब कुछ? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम माई साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द ऑथर साइड ऑल्सो, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है. इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल ऐसे ना लें कि कोई ना है तो 2 दिन का ही खेल है, क्वेश्चन आंसर्स किए और हो गया. नो, इफ़ यू रियली वॉन्ट योर सेल्फ to stand in this generation, in this era, you will have to be fluent in English by hook or by crook. चाहे आप 10,000 की नौकरी करो, चाहे आप 1 लाख की नौकरी करो, English is very much important. So never ever underestimate this subject. और डरना भी नहीं है, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल डरे बैठे कि नहीं हमसे नहीं होगा. Keep on trying. कीप ऑन चेंजिंग योर सेल्फ, कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ. नई नई चीज़ें सीखो. गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐप्स है विच विल हेल्प यू अलॉट. सो द क्वेश्चंस आर हियर दैट व्हाई दिस ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में. हमारे इम्पोर्ट्स एक्सीड क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट को? एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा? हमें प्रॉफिट क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा? हमें लॉस क्यों ज़्यादा हो रहा है? Why we look to developed nations for help and aid? Why we are amiss? क्यों हम डेवलप्ड नेशंस को, विकसित देशों को अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए देखते हैं? क्यों देखते हैं जब हम इतने सक्षम हैं? If we are that much capable, then why we are looking toward these developed countries for their help? उनकी हेल्प के लिए हम क्यों बैठे हैं? क्या ज़रूरत है हमें? This is a question mark for you. How you will answer these questions, it's up to you, it's your choice. Okay, so Indian intellect ये कहता है कि जब ब्रिटेन में टेस्ट करके हमें ये पता चला दैट हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, फिर ये ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट क्यों है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं, इम्पोर्ट्स ज़्यादा क्यों हैं? क्यों हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को वी एडमायर देम, वी लुक एट देम एंड वी आस्क देम ऑलवेज फॉर द हेल्प इन द एड? व्हाई दिस इज हैपन? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच वी विल हैव टू रीड. या जस्ट गिव मी अ सेकेंड, नो प्रॉब्लम. Saying so does not mean our progress is not. It means that ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में कोई प्रोग्रेस नहीं है. प्रोग्रेस है, विकास है, हो रहा है. द डेवलपमेंट इज़ ऑन इट्स पेस, इट इज़ गोइंग ऑन. ओके, द भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, डूंगरपुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स. देखो अब यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे अचीवमेंट्स की. दिख रहा है आपको ये भाखड़ा नांगल डैम, ये भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे अचीवमेंट्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपने अचीव किया है, जिसमें आपको सक्सेस मिली है, जिसमें आपको जीत मिली है, जो कि आपके देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो वो कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हमने यहाँ पे देखी. गॉट इट? या. बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन निगलेक्टेड. ठीक है, बट इन बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं. आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए,
ठीक है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए, बट कुछ और अच्छी छोटी सी चीज़ हुई आपकी लाइफ में, वो इग्नोर हो जाएगी चीज़। या कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, दैट हम अपनी लाइफ में छोटी चीज़ों को बहुत इजीली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारे लिए मैटर करती है हमारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, कि बड़ी अचीवमेंट क्या है मेरी। ओके, नाउ देयर इज़ अ नेम ऑफ दिस राइटर जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटिफुल। सो बेटा, ये जो आपके राइटर हैं E.F. शुमाकर, ओके, जिन्होंने अपनी बेस्ट सेलर मतलब वो बुक जो बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदी हो, इसको टाइटल दिया था स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। छोटा है बट बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है। सो E.F. शुमाकर ने ये बुक लिखी थी। ये बात आपको क्यों बताई जा रही है, वाई दिस थिंग इज हियर, दैट बिकॉज वी नेग्लेक्ट द स्मॉल थिंग्स वेन एवर वी आर हैविंग द बिग थिंग्स, एंड इट इज नॉट गुड टू इग्नोर दी स्मॉल थिंग्स. So this E.F. Schumacher's book, which is one of the best sellers, Small is Beautiful, उसमें कुछ उन्होंने ऐसे इंस्टेंसेस और यू कैन से सम एक्सपीरियंसेस, सम इंसिडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन विच उन्होंने ये बताया है कि स्मॉल थिंग्स आर सो ब्यूटिफुल. Okay, here are a few instances to show how the neglect of the small but important issues has hampered our glory. और next आपके चैप्टर में आपको क्या बताए गए हैं, कुछ important instances जिनके अंदर ये बताया गया है कि कैसी छोटी चीज़ें बहुत important होती हैं, बट आप क्या करते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, we don't focus on the small things and it hampers our ग्लोरी. हमारी जो ग्लोरी है उसको ये आघात पहुंचाता है, उसको हैम्पर करता है, उसको हर्ट करता है. ओके, सो आई होप यू गॉट इट टिल हियर. टुडे वी विल बी डूइंग टिल हियर ओनली. ओके, आई होप दैट यू लाइक द क्लास. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं आपके चैप्टर में यहाँ तक. फॉर एग्जाम्पल द शेयर, पैट्रियोटिज्म, अब्रॉड, फ्लुएंट, ओके, और नॉट, हैम्पर्ड. So take down or note down these words and write down the meaning. बिल्कुल आपके बुक के पीछे के पेज पे गिवन है, कोई बिल्कुल आपको रिसर्च करनी नहीं है. देयर इज़ नथिंग मच फॉर यू टू डू. बिल्कुल छोटी सी चीज़ करनी है आपको. जस्ट राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन वन साइड एंड द मीनिंग ऑन द सेकेंड साइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. रटो मत, डोंट डू दिस. रोट मेथड इज़ द वर्स्ट. और मेरी क्लास में, इन माई क्लास, व्हेनेवर आई एम टेकिंग एनी टेस्ट और आई एम चेकिंग योर कॉपीज, मेरे लिखे हुए आंसर्स मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता. आई वॉन्ट द किड टू राइट हिज और हर पर्सपेक्टिव. उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं रिगार्डिंग टू द चैप्टर. ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टिल हियर ओनली. आई होप दैट इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी चीज़ों को हैम्पर करते हैं, कैसे हम खुद को पीछे समझते हैं इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू दिस डेवलप्ड कंट्रीज, एंड हाउ इट इज़ गुड और बैड अकॉर्डिंग टू यू. तो एक क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए. एक असाइनमेंट तो दे ही दिया है मैंने आपको, एक क्वेश्चन बना देते हैं. चलिए, just give me a second. Yeah, I'll just shift the camera here a little bit and I'll write down a question. Yeah, okay. Write down this question. What is the question? Why we ignore small things. क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं? Why we ignore small things. अब regarding to this chapter, this is a question or you can say a worksheet or assignment for you which you will have to answer in your own words. अब नहीं आपको बुक में देखना है, कहीं नहीं देखना है, अपने वर्ड्स में आंसर आपको करना है. खुद आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा. बिकॉज if you will not understand, you will only do the rote memorization. That is not important for your understanding. ये बुक देने का ही क्या फ़ायदा, ये
चैप्टर देने का ही क्या फ़ायदा, जो मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बोला है, जैसे हमने पॉजिटिव हेल्थ वाला चैप्टर डिस्कस किया था, कुछ तो उद्देश्य होगा, देयर शुड बी एनी मोटिव ऑब्जेक्टिव कि आपको ये टॉपिक, या आप कह सकते हैं ये चैप्टर यहाँ पे गिवन है, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा इसका डेफिनेटली. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, और बिल्कुल घर पे रहिए. कीप ऑन यूजिंग द मास्क एंड द सैनिटाइज़र, डोंट गो आउटसाइड. अपनी बुक्स पढ़िए, फोकस करिए पढ़ाई पे. कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, कभी भी स्कूल खुल सकता है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी. ओके, सो हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और बुक्स पढ़िए, अपनी लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करिए. 14 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, डिस्कस करेंगे हम, वेरी श्योर. कोई भी प्रॉब्लम हो नोट डाउन करिए एक नोटबुक में कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है. ओके, देन इफ़ आई गेट टू नो द प्रॉब्लम आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर. ओके, कीप ऑन रीडिंग समथिंग न्यू. पूरे दिन बिंज वॉचिंग नहीं करनी है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया सीखना है. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.